Good morning, everyone. So I'll be starting with a brief introduction about myself. Then I'll be starting with uh, my UPSC journey of this engineering services exam preparation, and then I'll be taking your doubts from the comments. Right. So I secured All India rank 23 in engineering services examination 2023 in electrical engineering. I graduated from NIT Kurukshetra in 2021 from electrical engineering, and I started my preparation in March 2022. I started by taking coaching, and at that time I used to stay in Delhi. And during my preparation, during my preparation, I used to give all the exams in which I was eligible, whether my syllabus is completed or not, and that boosted my confidence a lot. And luckily I got to clear this exam in my first go of my preparation. So coming to the exam, motivation कहाँ से मिला था? Okay, I was good at academics from the very beginning. I used to stand first in the class, so studies were my motivation. I was very much motivated towards the studies, to know the things and to excel in my field. And ESC was the highest level of exam in my field, so I targeted this. And because we cannot rely on ESC, so we have to keep a backup also. So I used to give other exams also, like I give DDA, JE, and AE also, and AAI, ATC, SSC, JE, and I was able to crack most of these exams. And I finally joined MES as JE, and currently I'm working over there only and waiting for my joining through ESC. So coming to the exam, so there are three stages, as we all know: prelims, mains, and interview. So coming to prelims के लिए मैंने अपनी जर्नी मतलब ऐसे नहीं सोचे प्रिपेयर किया कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर prelims. But I focused on the learning the concepts, on understanding the concepts, whether it is for prelims or mains or gate or ESC, right? And while solving the questions, then that makes a difference for which exam you are preparing, right? So like while solving the questions, what I used to do, I kept one separate pen for marking the questions, in which uh, सॉरी प्रीलिम्स क्रैक कर लिया, सारा क्वेश्चंस आना चाहिए मैम, सारे क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए क्योंकि वहाँ पे देयर इज नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो, सो हम ब्लाइंड गेस भी नहीं कर सकते हैं. सो जस्ट जितना बेस्ट हो सकता है आपको अपना बेस्ट देना है, एंड रेस्ट द लीव टू द गॉड. तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी, PYQs या टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस या अपनी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, तो मैं क्या करती थी कि आई यूज टू मार्क द क्वेश्चंस जो मैं एक बार में अटेम्प्ट कर पा रही हूँ बिना किसी हेल्प के, उनको टिक करते चले जाओ, और जो जहाँ पे मुझे हेल्प लेनी पड़ रही है, जहाँ मैं अटक जा रही हूँ, तो उनको मैं स्टार मार्क कर देती थी, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को विजिट करूँ जो स्टार मार्क्ड है, so that I can save my time. I don't have to solve all the questions again, because टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, राइट? और अगर हम GS की बात करें तो सिलेबस इज वेरी वाइड, यू कैन नॉट रीड एवरीथिंग, राइट? तो GS के लिए मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी कि आई वेंट थ्रू द क्वेश्चंस, पहले कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके थ्रू मैं सिलेबस खुद का डिफाइन करती थी, और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मैं पढ़ती थी. और एक और चीज़ जो मुझे हेल्प की वहाँ पे, कि जो भी PYQs में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो भी थीम्स हैं, उनको मैं हाईलाइट कर देती थी अपनी नोट्स में, और तो फिर बाद में मुझे बस वो हाईलाइटेड वाला क्वेश्चन पढ़ना होता था. बार बार आई यूज टू कीप रिवाइजिंग दैट हाईलाइटेड पार्ट ओनली, और शॉर्ट नोट्स भी मैं वही हाईलाइटेड पार्ट्स को लेके एक शॉर्ट नोट्स बनाती थी. और कमिंग टू मेंस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन के इतने सारे पार्ट्स हैं, तो सभी के लिए आई यूज टू डिवाइड द टाइम, एंड एक क्वेश्चन मुझे इतने मिनट्स में सॉल्व करना है,
or choose the question, because there are options which question you have to solve, right? To choose the option वेरी वाइजली, बिकॉज एक बार चूज कर लिया और फिर बाद में अगर चेंज किया तो टाइम आपका वेस्ट हो चुका होगा. तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल थिंग देयर. और टेस्ट सीरीज में कभी कम मार्क्स भी आए तो वी डोंट हैव टू गेट डीमोटिवेटेड, बिकॉज मेरे टाइम पे भी आई यूज टू समटाइम्स आई यूज टू गेट लो मार्क्स, बट आई यूज टू कीप लर्निंग वेयर आई did the silly mistakes. So I used to rectify that, and that helped me in मेंस में, क्योंकि छोटी सी सिली मिस्टेक हुई और आपको 20 में से 2 मार्क्स मिलेंगे. It used to happen because the coaching institutes they took it very strictly. Although शायद मेन रियल एग्जाम में उतना स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं होती है, बट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं, बट दैट इज़ फॉर आवर ओन बेनिफिट. तो मार्क्स को लेके कभी डिसहार्टन नहीं होना है. इट्स जस्ट दैट वी हैव टू रेक्टिफाई आवर मिस्टेक्स एंड मूव फॉरवर्ड. नाउ कमिंग टू इंटरव्यू में देर आर two categories, we can say. One is DAF, in which it is all about yourself, and second one is the branch in which you are giving the exam. So for the DAF you have to know all about yourself. So make one diary, write about yourself, your place, from where you did your education, and where do you live currently, where have you lived in the past, and your hobbies and everything about you. And in the interview hall, just don't panic, keep calm and smiling, and whatever you know, and whatever you don't know, just accept and move on, right? And coming to the whatever discipline you are writing the exam, तो उसमें आपको आपकी सब्जेक्ट के बेसिक्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए. The interviewers are not expecting you very deep knowledge, but the basic knowledge at the very best, and the applications related to it in the daily life. How do you manage the things? That is all that matters. Yeah, so I can take the questions now. PYQ कैसे एनालाइज करना चाहिए? ओके, तो PYQs एनालाइज करने का तरीका मैंने बताया कि एक टाइप का क्वेश्चंस तो ये है कि आप एक बार में सॉल्व कर रहे हो तो उन्हें बस टिक करके आगे बढ़ जाओ, बाद में आपको करने की उन्हें दोबारा जरूरत नहीं है. और जहाँ पे आप अटक रहे हो उनको स्टार मार्क कर दो, ताकि बाद में आप उन्हीं क्वेश्चंस को रिविजिट कर सको. और PYQs को कोई भी इग्नोर ना करे, क्योंकि PYQ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वही आपको रियल मिरर दिखाएंगे कि रियल एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं. बिकॉज टेस्ट सीरीज में द कोचिंग स्टैंडर्ड सेट अ हाई स्टैंडर्ड, because they keep the difficulty level a little higher than the real. So priority should be PYQ, then test series, and then the textbook questions and notes. PYQ से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं क्या? हाँ जी, PYQ से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. Sometimes as it is they get repeated, and sometimes the data gets changed, but the theme is as it is. Any more questions, anyone? Okay, so अगर मुझे ही और टिप्स देनी है तो मैं कहूँगी कि एक तो आपको डेली अपना शेड्यूल बना के रखना चाहिए कि आपका पूरे दिन का शेड्यूल सेट होना चाहिए कि मुझे आज क्या क्या टारगेट्स हैं, क्या क्या करना है. because that will allow you to not indulge in something distracting और आपका टाइम वेस्ट होने से बचाएगा. और शॉर्ट नोट्स आपके काफ़ी हेल्प करेंगे. मैं कभी भी कोई भी एग्जाम देने जाती थी तो इट्स जस्ट द शॉर्ट नोट्स दैट यूज टू हेल्प मी. शॉर्ट नोट से क्या होता है कि बार बार बस दैट कंटेन्स द क्रक्स ऑफ योर नोट्स, एंड यू हैव टू लर्न दैट अगेन एंड अगेन. एंड मैंने अपने शॉर्ट नोट्स को स्कैन करके PDF बना के अपने फ़ोन में रखा था, तो सो दैट आई कैन ईजिली एक्सेस देम एनीवेयर. प्रीलिम्स के लिए कितना टेस्ट सीरीज लगाना कंपल्सरी है मैम? आई थिंक दो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज तो लगानी ही चाहिए.
और उनका एनालिसिस करना मस्ट है, क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं. तो just take the two test series of best institutes, and that will be sufficient, and along with the PYQs को भी आप टाइमिंग फोन में टाइमर लगा के तब आप सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा. रिवीजन स्ट्रैटेजी, रिवीजन मैं क्वेश्चंस के थ्रू करती थी, बिकॉज ऐसे नोट से रिवाइज करना तो मुझे एक भारी टास्क लगता था. तो आई यूज टू रिवाइज थ्रू द क्वेश्चंस ऑफ द PYQs दैट आई हैव स्टार मार्क्ड. कोचिंग लगाना ज़रूरी है क्या? कोचिंग का ये है कि देर आर पीपल हु हैव क्रैक्ड विदाउट कोचिंग ऑल्सो, but coaching gives you a defined syllabus and it keeps you on the track. So coaching is very much beneficial, but if you are not able to attend the coaching, then you can take the online coaching or the notes. It's just that coaching makes it easy for you. डेली का स्टडी स्केड्यूल कैसे रहता था? ओके. तो मैंने तो अपना कोचिंग ये एग्ज़ाम जो है वो कोचिंग के दौरान ही क्लियर किया. तो उसमें सुबह से शाम तक क्लास ही चलती थी कोचिंग की. उसके बाद आके जो सब्जेक्ट पढ़ाया गया है उसके मैं PYQs लगाती थी, और उसमें कुछ डाउट्स आए हैं तो मैं नेक्स्ट डे फैकल्टी से क्लियर करती थी. ये मैं आप सबको बोलना चाहूँगी कि अपने डाउट्स को डाउट्स ही ना रहने दें, उन्हें क्लियर करें ईदर थ्रू द फैकल्टी और अमंग योर पीयर्स और विद एनीवन, but you should clarify your doubts. पर डे कितने आवर्स पढ़ना चाहिए? मुझे लगता है कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सच अ बिग एग्जाम, तो आपको बाकी चीज़ों के लिए टाइम निकालना चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज़, ना कि स्टडीज़ के लिए टाइम निकालना चाहिए. यू शुड बी डिवोटेड कम्प्लीटली टुवर्ड्स योर स्टडीज़. तो मैक्सिमम टाइम आप जितना दे सकते हैं स्टडीज़ को उतना देना चाहिए, बट अपनी हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए. So because health should be the topmost priority. अगर health साथ नहीं देगी तो आप एग्जाम भी ढंग से नहीं लिख पाएंगे. And by health I do mean the mental health as well as physical health. For myself, I used to do workout. Sometimes I used to go to park, and I used to do meditation also. आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? Okay, my interview experience was very good. I was feeling like an officer at that time only, and I was very calm and composed, and I was giving the answers very calmly. In my interview panel, there was the interviewer. The chairperson was a female, and rest were males. They were politely asking the questions, and whatever answers I was not able to give them, I just said that sorry sir, or I'm unable to recall. And so we don't have to bluff, just accept the things, because हर कोई सब कुछ नहीं जान सकता, राइट? आई एम अ बिलो एवरेज स्टूडेंट. क्या मैं UPSC क्लियर कर सकता हूँ? ऑफकोर्स अगर आप UPSC आपका हार्ड वर्क मांगती है, तो अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं और आप डेडिकेटेड हैं, अगर आप ढंग से प्रिपेयर करेंगे डेली कंसिस्टेंटली, तो आप ज़रूर UPSC क्रैक कर पाएंगे. ऑल लैंग्वेज वीक, आई डेंट गेट योर क्वेश्चन. हाँ, लैंग्वेज से मे बी आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदी में दे सकते हैं कि नहीं. तो हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हैं. मेरे जो इंटरव्यूअर्स थे वो कोई मुझसे हिंदी में भी क्वेश्चंस पूछ रहा था, तो आई वाज रिप्लाइंग देम इन हिंदी ओनली. सो लैंग्वेज डजंट मैटर. यू मस्ट हैव द नॉलेज एंड यू मस्ट हैव दैट कॉन्फिडेंस. दैट मैटर्स ओनली. मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? मेडिटेशन कीप्स यू काम एंड आपको एंजाइटी होने से बचाता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है मेडिटेशन से. जो भी आसपास इतनी ज़्यादा एंट्रोपी है, तो कामनेस मिलती है. तो आई लाइक मेडिटेशन. आई डू इट डेली.
एनीथिंग एल्स? मॉक इंटरव्यू और यूपीएससी इंटरव्यू में क्या डिफरेंस होता है? ओके, मॉक इंटरव्यू का जो लेवल है वो हायर रखा जाता है, तो वहाँ पे दे प्रिपेयर यू फॉर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन दैट यू मे फेस इन योर रियल इंटरव्यू। तो मॉक इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे मेरे हर एंगल पे they touched every corner, maybe related to your background or academics and everything, so that कि रियल इंटरव्यू में कैसी भी सिचुएशन आए तो आप इजीली वो हैंडल कर सकें। तो जितने ज़्यादा इंटरव्यूज देंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, बट रियल इंटरव्यू से आप मॉक इंटरव्यू से आप रियल इंटरव्यू को एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि मॉक इंटरव्यू मेरे उतने अच्छे नहीं हुए थे जितना मेरा रियल इंटरव्यू हुआ था। हार्डवर्क इन टर्म्स, हार्डवर्क का मतलब है कि सारे प्रीवियस क्वेश्चंस करना, सारी टेस्ट सीरीज को देना, कोई बिना किसी एक्सक्यूज दिए, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं, तो हमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं देना, क्योंकि दिस वे वी आर हार्मिंग आवरसेल्व्स ओनली। तो बिना कोई एक्सक्यूज दिए सारी टेस्ट सीरीज को देना है, और डेली you have to set a target and achieve that. This is hard work. I think we can end the session now. Thank you so much and all the very best to you. Give your 100% to whatever exam you prepare. All the best. Thank you.